Hello, welcome to e-learning. I am Navdeep, working as PGT-IP in Cambridge International School, Jasua. Students, as you know that today you have gone through the uh, half-yearly exam for IP, and today we are going to discuss the solution of the questions. So, moving next. So we will discuss the all the subjective questions that you have attempted in the today's exam. Clear? So without wasting time, moving to the today's first subjective question. So the 2 marks 19th question was, what is series in pandas, and explain with the help of example. So students, as you all know, series is a one-dimensional labeled array capable of holding any type of data like integer, string, float, Python objects. So this is just equivalent to very similar to the arrays, and the axis labels are collectively called index. So you know how to make what is the index is from where we can access any element of the series. Panda series is nothing but a column in an Excel sheet. So what a Excel sheet look like, that is what similar to the Panda series. And here you can just give a small example for the this Panda series, how to create or any example of the series. Next, there was a applied question. What is the output of the following code? So as you can see that first statement is import pandas as PD, and then we have created the series object S. So first part is data and second part is index. So as there are 5 values, so that's why we have 5 index values here also. And the first question here is this S greater than 2. S is basically the series object. So all the series object will be compared with 2. So like 1 is first compared with 2. So 1 is greater than 2? No. So what will the answer we will get? False. 2 is greater than 2? No. So this is also false. 3 is greater than 2? Yes. True. Then 4 is greater than 2? Yes. And 5 is greater than 2? Yes. So what type of result you will get, you can see here in the output part here. So now for index A and B, the result will be false. For C, D, E index values, the result will be 2, as I have already explained with you. So this is the first part. The second part here is, you know that in the series with the index value E, clear, I have changed the value from 5 to 6. Clear? And then when I get this series object again, you will find 1, 2, 3, 4, and in place of 5 you will get 6 because the value is already there. So just you have to apply your thought process and get the answer. The next is another 2 marks question. What is the use of index parameter in the PD series method? So this method is basically used for creating the series. The index value should be unique and hashable. Hashable means searchable. It must be of the same length as data. Clear? As we have seen in the previous question also, the number of index values and the number of data are exactly same. If there is a mismatch, there will be a error. And next is we have created this series using this object pd.series method, and here index values are 0, 1 to 0, 1 to 3, and we have used a scalar value 4 for creating the series, and in the next step print text we have just printed the series. So this is a just a question where you have to focus on the pd.series method and give one relevant example. So now moving to the next question is,
Clear? Again, this is a output related question is, as you can see here, we have created a object my series. Again, we have used PD series method, and here we have now taken the dictionary. So in dictionary we have three values, and we have printed my series, again the series object, and there is a comparison also. My series should be greater than 20. So Indore is not greater than 20, it's just 20. Ujjain is having a value that is greater than 20, yes, and Bhopal also. So Ujjain and Bhopal will get printed, but Indore will not get printed here. So this is basically here we have used the concept of how to access the member of a dictionary. Clear? So now we have one more applied question is, consider a CSV file. Students, you already know that for dealing with CSV file we have this read underscore CSV function. So this is the method that we exclusively used for dealing with the CSV file in Pandas. So this CSV file is having the following details: T code, maybe teacher code, teacher name, department and salary of teachers. Write the Python code to shift the data into a data frame. So इसमें हमने क्या करना है, बेसिकली जो फाइल में डाटा पड़ा हुआ है उसको हमने कन्वर्ट करना है इनटू ए डाटा फ्रेम. सो यू नो दैट ये pd अंडरस्कोर csv ये फंक्शन है, ये सॉरी रीड अंडरस्कोर csv फंक्शन है इसीलिए है कि ये क्या करता है कि CSV फाइल में से डाटा फैच करके इट पुट्स इनटू ए कन्वर्ट्स इनटू ए डाटा फ्रेम. तो हमने क्या कर दिया है, फर्स्ट पैरामीटर में इसमें हमने पाथ दे दिया है CSV फाइल का, teacher.csv फाइल का. ये मेरे सिस्टम के ऊपर D ड्राइव में पड़ी हुई है. और साथ में हमने क्या मेंशन कर दिया, इंडेक्स कॉलम इज इक्वल टू टी नेम, बिकॉज हमने इसमें अंदर ये है दिस हैज बीन आस्क्ड मेकिंग टी नेम एज इंडेक्स. तो टी नेम को हमने इंडेक्स क्या करना है, इंडेक्स इसको एज ए इंडेक्स कॉलम रख दिया हमने टी नेम को. The main objective here is, students, you have to consider first a CSV file in your mind. So I will show you one more slide here. So in this slide, this is my CSV file. Don't forget the fundamental point is कि हमारे माइंड में पहले एक CSV फाइल होनी चाहिए. So I have, मैंने एक्सक्लूसिवली एक CSV फाइल की स्नैपशॉट ही आपके सामने लगा दी है. ऐसे ये CSV फाइल ये गूगल स्प्रेडशीट में बनाई हुई है. आप लोगों का भी सभी जीमेल में अकाउंट है, तो वहां पे जहां पे हम गूगल ड्राइव को एक्सेस करते हैं वहां पे ये गूगल स्प्रेडशीट का ऑप्शन होता है. तो वहां से आप खुद की एक CSV फाइल क्रिएट करके उसको डी ड्राइव में सॉल्व करके क्रिएट करके एंड यू कैन बेसिकली सॉल्व दिस क्वेश्चन. क्लियर? तो बस सिंपली क्या किया है, रीड अंडरस्कोर CSV में दो पैरामीटर हैं, पाथ ऑफ फाइल एंड एक हमने इंडेक्स कॉलम सेट किया है इसका, और बाद में इसको क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया है. सो दैट इज हाउ व्हाट द रिजल्ट यू आर गेटिंग इन फ्रंट ऑफ यू. ये रिजल्ट कहाँ से आ रहा है, ये जो CSV फाइल ये यहाँ पे जो मैंने बनाई हुई है. आप लोगों ने कोई CSV फाइल एग्जाम में बनानी नहीं थी, जस्ट यू हैव टू राइट द appropriate code. Just for your better understanding, I have explained you like this. Okay, hope you have find the solution understood. So moving to the next question is question number 24. So that is, what is the difference between a having and a group by clause. So students, in the MySQL part we have focused on these two few days back. तो ग्रुप बाय क्लॉज क्या है, ग्रुप बाय क्लॉज इज ए SQL कमांड इज यूज्ड टू ग्रुप रोज दैट हैव द सेम वैल्यूज. तो ग्रुपिंग होती है इसमें बेस्ड ऑन द कॉमन कंटेंट. ग्रुप बाय क्लॉज इज यूज्ड इन द सिलेक्ट स्टेटमेंट. सो दिस इज आल्सो ए बेसिकली ए एग्रीगेट ऑपरेशन. बेसिकली हैविंग क्लॉज क्या है, हैविंग क्लॉज इज बेसिकली ए कंडीशन ऑन द ग्रुप बाय क्लॉज. So having clause specifies a SQL select statement should only return rows where aggregate values met the specified condition.
तो ग्रुप बाय क्लॉज के अंदर अगर हमने कंडीशन अप्लाई करनी हो तो उसके लिए हम हैविंग क्लास का यूज करते हैं। हैविंग क्लास फिल्टर्स द डाटा ऑन द ग्रुप रो बट नॉट ऑन द इंडिविजुअल रो। तो ये ग्रुपिंग के ऊपर ही कंडीशन के लिए ये अप्लाई होती है हैविंग क्लास, इंडिविजुअल रो के ऊपर ये हैविंग क्लास की एप्लीकेशन नहीं। So next there is a question, is a sort of a query basically. Krishnan is using a table, which table? Employee table, emp. It has the following columns: code of the employee, basically name, salary, and department code of the employee. And he wants to display the maximum salary department wise. So student focus here on the maximum salary भी हमने find out करनी है, but it should be department wise कि हर एक डिपार्टमेंट में से maximum salary किस एम्प्लॉय की है। So he wrote the query like this: डिपार्टमेंट कोड मैक्सिमम सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल। सो इससे हमारे पास मैक्सिमम सैलरी तो आ जाएगी, डिपार्टमेंट कोड भी आ जाएगा हमारे पास, बट ये सभी में से वो मैक्सिमम सैलरी को फाइंड आउट कर देगा। ये डिपार्टमेंट वाइज सैलरी इससे नहीं आएगी, बट ही डिड नॉट गेट द डिजायर्ड रिजल्ट। तो डिजायर्ड रिजल्ट के लिए वी हैव रिटन दी राइट कोड हेयर: सेलेक्ट डिपार्टमेंट कोड मैक्सिमम सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल ग्रुप बाय डिपार्टमेंट कोड। अब मैक्सिमम सैलरी आएगी बेस्ड ऑन दी, पहले वो डिपार्टमेंट वाइज ग्रुपिंग होगी, फिर उसमें से मैक्सिमम सैलरी फैच होगी, एंड यू विल आल्सो गेट दी डिपार्टमेंट कोड इन दी रिजल्ट। सो आई होप दैट यू फाइंड इट वाइटल। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So this was a question basically to create a student table with primary, not null and foreign key constraints. So the first is roll number, where we have applied the primary key constraint. On name we have applied the not null constraint, city, and then we have teacher ID, we have kept it as foreign key। teacher ID को पहले हमने डिक्लेयर कर दिया, this is varchar type, और बाद में teacher ID के ऊपर foreign key constraint अप्लाई कर दिया, which references to the टीचर टेबल्स आईडी एट्रीब्यूट। ये आईडी एट्रीब्यूट कहां से है? ये आईडी एट्रीब्यूट टीचर टेबल का प्राइमरी की होगा। क्लियर? सो दिस इज हाउ वी कैन अप्लाई दी फॉरेन की कंस्ट्रेंट। मूविंग टू दी वन मोर क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 27. So this we have to focus on the question number 27. So now we have entered into a 3 marks question. So consider the following data frame, and here what you have to do: write the code to find the mean value from the above data frame over the index and the column axis. The sum of the function to find the sum of all the values over the index axis and find the median of the data frame. So students, in the very first step is basically we have to create the data frame. So I can show you this in the Jupyter notebook also. So Jupyter notebook में सबसे पहले step number 1 is to create the data frame. तो एज इट इज जो हमारे पास क्वार्टरली जो डाटा था उसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया है लाइक दिस। क्लियर? यू कैन सी इन दी क्वेरी पार्ट आल्सो कि जैसा हमारे पास डाटा था 2000, 4000, 5000 क्वार्टरली फर्स्ट क्वार्टर, सो इन द सेम वे वी हैव बेसिकली पुट हियर इनटू द एप्रोप्रिएट फॉर क्रिएटिंग दी डाटा फ्रेम। तो इससे हमारे पास डाटा फ्रेम आ गया। फिर हमने बाद में क्या कर लिया, डाटा फ्रेम को यहाँ पे प्रिंट कर लिया। सो दिस इज द डाटा फ्रेम रिजल्ट दैट वी हैव। ठीक है, इसमें क्वार्टर 1 आ गया, यहाँ पे क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4, और उसमें ये पहली वैल्यू जो है 2000, फिर ठीक है 4000 फर्स्ट क्वार्टर की, फिर 5000 फर्स्ट क्वार्टर की, लाइक दिस इज फॉर क्वार्टर 2 एंड क्वार्टर 3 एंड 4। नेक्स्ट जो इसके अंदर हमने ऑपरेशन अप्लाई करना था, द वेरी फर्स्ट ऑपरेशन वाज दी
यू सी हेयर, यहाँ पे हमने क्या उसका कैलकुलेट कर लिया है, मीन कैलकुलेट कर लिया है, जस्ट डाटा फ्रेम के ऊपर हमने मीन मेथड को अप्लाई किया एंड यू गेट द क्वार्टर 1 का हमारे पास मीन आ गया, क्वार्टर 2 का मीन आ गया, क्वार्टर 3 का मीन आ गया, क्वार्टर 4 का मीन आ गया हमारे पास। ठीक है, ऐसे ही अगर हमने रो वाइज मीन निकालना है, फर्स्ट रो का मीन निकालना है, फिर सेकंड रो का मीन निकालना है, फिर थर्ड रो का मीन निकालना है, फोर्थ का, फिफ्थ का, तो उसके लिए हमें मीन के अंदर हमें पैरामीटर पास करना पड़ेगा x इज इक्वल टू 1। बाय डिफॉल्ट होता है x इज इक्वल टू 0 जो ऐसे कॉलम वाइज रिजल्ट निकालता है। तो x इज इक्वल टू 1 से हमारे पास क्या है, कैसे रिजल्ट आएगा, ये रो वाइज मीन कैलकुलेट होके आ जाएगा। फिर फॉर ईच रो, ये जितनी 5 रोज है। नेक्स्ट था हमारे पास टू फाइंड द सम। तो अगर हमने ये रो वाइज सम कैलकुलेट करना है तो x इज इक्वल टू 1 और डाटा फ्रेम डॉट सम मेथड का यूज करेंगे एंड हियर वी हैव कैलकुलेटेड द सम रो वाइज। और लास्ट था हमारे पास टू कैलकुलेट द मीडियन, क्वार्टर 1 का मीडियम, क्वार्टर 2 का मीडियन, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4 का मीडियम। जस्ट वी हैव टू अप्लाई डाटा फ्रेम डॉट मीडियन मेथड का यूज करना है इसके अंदर। So this is how we have done this question number 27. This is a 3 marks question. The next 3 marks question is question number 28. So ये अभी जो हमने क्लासेस से पहले डाटा फ्रेम की एक्सरसाइज की थी, उसकी हमने ये दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, कोलकाता ऐसा ही डाटा लिया था हमने, जिसके अंदर हमने पॉपुलेशन, हॉस्पिटल और डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इस तरह का डाटा लिया था। सो द सेम उसी तरह का क्वेश्चन है ये। फर्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर, राइट द कमांड टू कंप्यूट द सम ऑफ एवरी कॉलम ऑफ द डाटा फ्रेम। हर एक कॉलम का क्या आ जाए हमारे पास, सम आ जाए। तो इसके लिए स्टेप नंबर 1 तो यही है दैट वी हैव टू क्रिएट द डाटा फ्रेम। सो फर्स्ट आवर एम शुड बी हाउ टू क्रिएट द डाटा फ्रेम। जो हमारे पास ओरिजिनल क्वेश्चन है उसी को हमने क्या कर दिया है, उसका एक डाटा फ्रेम बना दिया है, जिसमें मैक्सिमम टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर, रेनफॉल को हमने डाटा में रखा है और इंडेक्स में हमने रख दिया दिल्ली, बेंगलोर, चेन्नई एंड मुंबई सिटीज। नाउ मूविंग टू दी फर्स्ट क्वेश्चन इज, तो पहले क्या हमने किया था, सम हमने कैलकुलेट करना है कॉलम वाइज। तो मैक्सिमम टेम्परेचर का ये सम है, ये मिनिमम का है और ये रेनफॉल का सम है। नेक्स्ट है हमें मीन ऑफ रेनफॉल कैलकुलेट करना था। तो इसको हमने लिखना कैसे है, डाटा फ्रेम, बाद में हमने मेंशन करना है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर नेम ऑफ द कॉलम रेनफॉल डॉट मीन। तो इसने क्या किया, रेनफॉल कॉलम का क्या कर दिया इसने, ये यहाँ पे दिस इज द एवरेज, सॉरी, और एवरेज और मीन ऑफ रेनफॉल। फिर ये 34 के राउंड अबाउट आएगा। यू कैन सी फ्रॉम द डाटा आल्सो, ये रेन वाला जो डाटा है, क्लियर, ये रेन वाला डाटा है, इसका एवरेज 34 के अबाउट ही आएगा। और लास्ट था मीडियन ऑफ मैक्सिमम टेम्परेचर। सो द मीडियन ऑफ दिस इज हाउ वी राइट, DF मैक्सिमम टेम्परेचर डॉट मीडियन। सो दिस विल गिव यू द मीडियन ऑफ मैक्सिमम टेम्परेचर। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है वो यही है कि दैट हाउ वी हैव टू राइट द कोड फॉर एक्सेसिंग द मैक्सिमम टेम्परेचर इन द डाटा फ्रेम। Next है question number 29. So this is write a program in Python to load the student table in a data frame. अभी recently जो हमने किया था how to import the data from MySQL to data frame. तो you can see here the example. पहले तो एक हमें pandas को import किया है, फिर हमने ये MySQL dot connector, ये भी हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था। दिस इज दी पैकेज दैट वी नीड एज एसक्यूएल, उसको मेंशन कर दिया। फिर हमने एक कनेक्शन क्रिएट किया। कनेक्शन के अंदर 4 इंपॉर्टेंट पैरामीटर होते हैं, होस्ट, यूजर, पासवर्ड एंड नेम ऑफ द डाटाबेस। क्लियर। फिर उसके बाद हमने क्या किया, ये जो माई कनेक्शन क्रिएट किया कनेक्शन, उसको हमने चेक करना है कि माई कनेक्शन कनेक्टेड है। कनेक्टेड है तो तभी हमारी क्वेरी चलेगी। तो उसके अंदर हमने क्या किया, रीड अंडरस्कोर एसक्यूएल फंक्शन से हमने क्या किया, जो अपनी क्वेरी रन की ओवर द स्टूडेंट टेबल। ठीक है जी, ये स्टूडेंट टेबल किस में है, इस डाटाबेस में है, CAS। तो इसको हमने रन करके माई कनेक्शन में हमारे पास डाटा आ गया। वो डाटा हमने कहां पे ट्रांसफर कर दिया, डाटा फ्रेम में। रीड एसक्यूएल का यही काम होता है
ये डाटा को रीड करके कन्वर्ट कर देगा इनटू ए डाटा फ्रेम, और बाद में हमने उस डाटा फ्रेम को क्या कर लिया, प्रिंट कर लिया, जिससे हमारे पास ये रिजल्ट आ गया स्टूडेंट टेबल का, जिसके अंदर हमारे पास दो स्टूडेंट्स का डाटा है, रोल नंबर 1 एंड रोल नंबर 2। और अगर ये क्वेरी नहीं चलती तो एल्स पार्ट में हमारे पास क्या मैसेज आ जाएगा, MySQL कलेक्शन प्राउड। तो दिस क्वेश्चन इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, एंड just before the exams we have concentrated on this concept, how to fetch the data from MySQL using Python. So next there is again one applied question is write a program to plot, ये plot के spelling यहाँ पे थोड़ी सी mistake है, PLOT, plot a bar chart for medals won by Australia, the data is, तो डाटा हमें दिया है गोल्ड 81 किए हैं ऑस्ट्रेलिया ने, 59 सिल्वर विन किए हैं, ब्रॉन्ज किए हैं 60 और टोटल है 199। तो इसको जस्ट हमने प्लॉट करना है यूजिंग द बार चार्ट। तो सबसे पहले हमने क्या ले लिया, पहले हमने जो डाटा हमें गिवन है इन द फॉर्म ऑफ मेडल्स उसको इन्फो में डाल दिया, और जो ऑस्ट्रेलिया नाम से एक वेरिएबल ले लिया इन द फॉर्म ऑफ ए लिस्ट, जिसमें हमें उसकी जो मेडल टैली है, गोल्ड कितने हैं उसके पास 80, सिल्वर कितने 59, ब्रॉन्ज कितने 60, टोटल कितने हैं 199, इसको रिप्रेजेंट कर दिया। फिर हमने बार फंक्शन को यूज कर लिया, जिसमें हमें दो पैरामीटर रिक्वायर्ड है, वन इज ऑन दी वन एक्सिस एंड द अदर विल बी ऑन दी अदर एक्सिस। एक हमने एक्स एक्सिस लेबल ले लिया मेडल टाइप, वाई लेबल में हमने ले लिया मेडल काउंट, ये जो मेडल काउंट है दैट विल बी ऑन वाई एक्सिस, मेडल की टाइप जो है दैट विल बी देयर ऑन दी एक्स एक्सिस, और फिर जस्ट शो फंक्शन से हमने उसको क्या कर लिया, प्रिंट कर लिया। क्लियर? तो अगर आप इस क्वेश्चन की अगर आप आउटपुट दिखना चाहते हो, सो यू कैन सी दी आउटपुट हियर आल्सो, वेरी सिंपल एंड इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो इस तरह की हमारे पास जो है वो आउटपुट हमारे पास आएगी, दैट इज गोल्ड जो है उसके पास, दिस इज द गोल्ड, जो मेडल्स हैं, मेडल टाइप इट इज ऑन द एक्स एक्सिस, मेडल काउंट इज देयर ऑन द वाई एक्सिस, यहाँ पे आगे सिल्वर कितने वन किए हैं, ब्रॉन्ज कितने किए हैं और टोटल कितने किए हैं, अबाउट 200 के आसपास इसने टोटल मेडल वन किए। So moving to the next 3 marks question, find the output of the following code। So इस कोड की हमने आउटपुट फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, इसमें हमने डाटा फ्रेम मेथड को यूज किया है, दैट विल बेसिकली जो हमारे पास डाटा है, डाटा प्लस इंडेक्स, उसको कन्वर्ट करेगा डाटा फ्रेम में। तो इंडेक्स में आ जाएगा हमारे पास, डाटा में आ गया हमारे पास ये जो डाटा गिवन है, क्लियर, और इंडेक्स हमने मेंशन कर दिया, यहाँ लेफ्ट साइड पे आ जाएगा फर्स्ट एंड सेकंड और कॉलम्स। इस डाटा को जो हेडिंग है दैट विल बी ए एंड बी। और सिमिलरली एक दूसरा हमने डाटा फ्रेम बनाया है, उसमें भी हमने यही डाटा यूज किया है, इंडेक्स भी फर्स्ट एंड सेकंड यूज किए हैं, बट उसके अंदर हमने कॉलम का नाम रखा है ए एंड B1। तो उसमें टॉप पे यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए एंड B1 विल बी दी रिस्पेक्टिव नेम ऑफ द कॉलम्स, ठीक है। एक में हमारे पास कीज आ जाएंगी, दूसरे में हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी। सिमिलरली यहाँ पे कीज आ जाएंगी ABC इन ए कॉलम, और नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास ये वैल्यूज 6, 32 एंड 20। बट सी हियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे दो इस जो यहाँ पे जो फर्स्ट क्रिएट हो रहा है, इसमें दो कॉलम जो क्रिएट हो रहे हैं, इसमें 2 वैल्यूज हैं, इसमें 3 वैल्यूज हैं। तो हाउ दिस मिसमैच इज बेसिकली हैंडल्ड इन द पाइथन। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे क्या है कि मिसमैच के लिए उसने नॉट ए नंबर को रिप्रेजेंट कर दिया। ये जो फर्स्ट आउटपुट है DF1 के लिए है, डाटा फ्रेम 1, ठीक है जी, और दूसरी आउटपुट है डाटा फ्रेम 2 के लिए, और डाटा फ्रेम 1 में है हमारे पास, ठीक है,
जो है हमारे पास इंडेक्स वैल्यू है फर्स्ट एंड सेकंड, कॉलम नेम है ए एंड बी आ गया हमारे पास, और पहली वैल्यू आ गई 10, बी में वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 20, सेकंड है ए में वैल्यू कितनी आ गई 6, बी में वैल्यू कितनी आ गई 32, क्लियर, and this is how the values are represented. Similarly for the other frame, and you have A and B1 are the heading, clear, and ये हमारे पास कौन सी वैल्यू होगी 10, and ये आ गई हमारे पास 10, फिर सेकंड वैल्यू कौन सी है हमारे पास 6, और NaN stands for not a number. So this is how this data is represented. We can see its output in the Jupyter notebook also. So here in this code you can also see df1 के अंदर क्या है हमारे पास, df1 के अंदर जो डाटा है उसके अंदर हमारे पास दो ही कॉलम है A एंड B, तो C डिस्प्ले नहीं होगा यहाँ पे. दी इंटरेस्टिंग थिंग इज इट, तो A की वैल्यू कितनी है 10, दूसरे A की वैल्यू कितनी है 6, B की वैल्यू कितनी है 20, और यहाँ पे B की वैल्यू कितनी है 32. ये हो गया हमारे पास फर्स्ट df1 के लिए. सेकंड df1 के लिए क्या है हमारे पास डाटा जो है, फिर हमारे पास कॉलम A में क्या है, कॉलम A में है 10, और दूसरे A में कितना है हमारे पास 6, और देखो B1 के लिए हमारे पास कोई भी हमारे पास यहाँ पे की नहीं है, किसी के साथ भी B1 का मैच नहीं है. तो B1 के साथ हमें क्या लिख रहे हैं हम NaN, दैट इज नॉट ए नंबर. तो थोड़ा सा ये यहाँ पे ये ट्रिकी पार्ट है. So moving to the next question. तो कंसिडर दी, यहाँ पे एक सेल्समैन का है हमारे पास टेबल. तो डिस्प्ले ऑल द सेल्समैन हु आर लोकेटेड इन मुंबई. सो सिलेक्ट नेम फ्रॉम सेल्समैन वेयर सिटी इज मुंबई. डिस्प्ले द सेल्स नेम salesman, all salesmen who have sales more than 1 lakh. So select name from salesman where sales is greater than 1 lakh. Clear? And last is count the total number of salesmen in the organization. तो यहाँ पे ये हमारे पास aggregate function आ गया count. So select count from salesman. So this is how we are going to solve the question number 32 based on the queries. Clear? The next is create the following table with the appropriate constraints. तो इसके ऊपर हमने appropriate constraints अप्लाई करने हैं. तो जैसे मैंने एडमिशन नंबर के ऊपर डाल दिया, प्राइमरी की नेम के ऊपर डाल दिया नॉट नल, क्लास के ऊपर नॉट नल डाल दिया. सो बाकी एप्रोप्रिएट डाटा टाइप डाल दिया. कैरेक्टर के अंदर फ़ोन के ऊपर इसको हमने फिक्स कर दिया, इसकी लेंथ को, इसके हमने फिक्स कैरेक्टर लेंथ यूज कर लिया, रादर देन वैर कैर की जगह हमने कैरेक्टर को यूज कर लिया. सो यू हैव टू बेसिकली अप्लाई द एप्रोप्रिएट कंस्ट्रेंट्स ऑन द स्टूडेंट्स टेबल. नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास, जस्ट वी हैव टू अप्लाई दी ये ऑपरेशन थे, राउंड है, ट्रंकेट है, मोड है. तो फर्स्ट है हमारे पास राउंड. आपको पता है राउंड क्या करता है, राउंड ऑफ करता है अप टू 1 डिजिट. सो नेक्स्ट डिजिट 4 है, तो राउंड आफ्टर 1 डिजिट देयर विल बी नो चेंज इन दी वैल्यू. 3 का 3 ही रह जाएगा. अगर यहाँ पे 4 की जगह 5 होता तो यहाँ पे 3 की वैल्यू क्या बन जानी थी, 4 बन जानी थी. नेक्स्ट है हमारे पास ट्रंकेट. ट्रंकेट जस्ट ट्रंकेट सी डिजिट्स, इसमें कुछ राउंडिंग ऑफ नहीं होता. डेसिमल के बाद हमने डिमांड किए हैं 2 डिजिट्स, तो 2 डिजिट्स रिजल्ट में रह जाएंगे. The third digit will get removed in the using the truncate function. तो लास्ट था हमारे पास mode function. Mode function, as you know that it returns the remainder. So you will get the remainder here 1. फर्स्ट नंबर को सेकंड से डिवाइड होके हमारे पास क्या आ जाएगा, रिमाइंडर. तो 35th जो क्वेश्चन है, दैट इज यू हैव टू राइट अबाउट द एग्रीगेट फंक्शंस.
ये सारे मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं, मैक्सिमम, मिनिमम, एवरेज, काउंट and sum function. These are the aggregate function. You have to just explain a bit about these aggregate functions. And write about the common MySQL data types. तो इनमें से जो आप important data types हैं, like character है, varchar है, integer, float, double, date and time. You can write about the basics of these data types which are used in MySQL. So next we have to talk about these 4 marks questions. First is write a program to create a data frame storing salesman details. तो salesman detail आपने 5 salesman की details इसमें डालनी है, जैसे 5 नेम हो गए, ठीक है, यहाँ पे सेल्समैन के बारे में डिटेल मेंशन है, नेम है, उसकी जोन है और उसकी सेल्स है। तो नेम में ये 5 नेम आ गए दैट वी हैव स्टोर्ड इन ए लिस्ट, राहुल, रिया, रमेश, श्रिया, भव्या। जोन हमने ले ली है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, वट एवर दी जोन आपको कंफर्टेबल है, यू कैन टेक दैट। और जो थर्ड पैरामीटर है ये सेल्स, वो हमने ये सेल्स में ले ली, ठीक है, सेल्स ऑफ दीज 5 सेल्समैन, कोई भी हम रेंडमली ये सेल्स ले सकते हैं। फिर हमने डाटा फ्रेम को यूज करके, डाटा फ्रेम मेथड को यूज करके वी हैव पास द डाटा एज वेल एज द इंडेक्स। तो इनका हमने इंडेक्स वैल्यू दे दी, बिकॉज 5 नेम्स हैं तो 5 सेल्समैन, तो 5 इंडेक्स वैल्यू हमने यहाँ पे एंटर कर दी, एंड देन वी हैव प्रिंटेड द डाटा फ्रेम एंड यू कैन सी द रिजल्ट इन द फॉलोइंग पार्ट। सो दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन, थोड़ा सा माइंड में इसमें अप्लाई करना है इसके अंदर, दैट हाउ यू हैव टू नेम द सेल्समैन एंड द जोन एंड पुट द एप्रोप्रिएट सेल्स एंड फाइनली यू कैन गेट द रिजल्ट। So next है write a program to print a data frame 1 row at a time and print only first 3 rows. तो बेसिकली जो प्रीवियस क्वेश्चन है उसी के अंदर मैंने ये अप्लाई कर दिया है। बेसिकली इसके अंदर जो यूज होना था वो इटर रोज मेथड का यूज होना है टू डिस्प्ले 1 रो एट ए टाइम। क्लियर? तो ये हमने एक रो सीरीज जो ऑब्जेक्ट है इसको यूज करके, क्लियर, दैट वी हैव प्रिंटेड दी 1 रो एट ए टाइम इन इटर रोज यूजिंग द इटर रोज मेथड अप्लाइड ऑन दिस डाटा फ्रेम। ये डाटा फ्रेम ऑलरेडी हमने प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर बनाया हुआ है, उसी को यूज कर लिया, एंड हियर यू कैन प्रिंट दी रोज ऑफ द डाटा फ्रेम। नेक्स्ट था हमारे पास क्वेश्चन जो एक और था 4 मार्क्स क्वेश्चन 39, व्हाट डू यू मीन बाय द डाटा विजुअलाइजेशन। सो यू हैव टू राइट अबाउट द प्रोसेस ऑफ डाटा विजुअलाइजेशन, जिसमें हमारा मेन पर्पस क्या होता है, बेसिकली हम पिक्चोरियल रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, पिक्चर से हम अपनी रिजल्ट को शो करते हैं। जैसे यू नो इन डाटा विजुअलाइजेशन लाइक वी हैव डिस्कस द बार चार्ट इन द सेम solution. So a picture is worth 1000 words. So here you have to highlight about the data visualization. So we are familiar with this expression. It especially applies when trying to explain the insight. जब भी हम डाटा को एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो उसके अंदर we use the concept of data visualization where we can represent the large scale data in a better way. Clear? And how we customize different plots. तो कस्टमाइजेशन के अंदर क्या आता है, हाउ वी कैन इम्प्रूव द लुक ऑफ आवर प्लॉट्स, उसकी हम लुक को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, बाय एडिंग द लेबल्स, एक्स एक्सिस लेबल, वाई एक्सिस लेबल, बाय एडिंग द टाइटल इनटू द चार्ट, एंड वी कैन पुट अप लीजेंड्स इन द प्लॉट। सो देयर आर कस्टमाइजेशन से क्या हो सकता है, हम अपनी डाटा की लुक को और इम्प्रूव कर सकते हैं। So you have to just briefly tell about the data visualization and then you have to focus on the importance of customizing the plots. And the last subjective question is that you have to explain 2 date functions and 2 text functions. Now we'll tell you the current time
and a date function is there to tell how to work with the date and what is the default format of the date is and how you can change the format of the date also. Then is uCase method जो है, this is a text function. Uh, this converts the text to uppercase. और जो length method है, it basically tells the length of the given text. So I hope that you have found the today's solution interesting. And if you still have students doubt, you can come and contact me and we can discuss any of the question to the level which you want. So at the end, I thank you all for attending the session. Thank you very much.